جو چیز جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہو، حاصل کی گئی ہو، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ مائک مہنگے داموں خریدا گیا، اس کو لا کے اللہ کے پاک گھر میں رکھا گیا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ آواز کو لاؤڈ کرے، آگے پہنچائے، لیکن اگر یہ اپنا کام نہیں کرتا تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، اسے کسی کباڑیے کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو چیز بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ گاڑی اتنی دیر تک گاڑی ہے جب تک وہ چلتی ہے، سفر کرتی ہے، اور جب وہ سفر نہیں کرتی پھر وہ گاڑی نہیں کہلاتی، پھر اسے کوئی کھٹارا کہہ دیتا ہے، کوئی سکریپ کا مال کہہ دیتا ہے، کوئی صرف لوہا کہہ دیتا ہے۔ مقصد، جس مقصد کے لیے 5-6 دن مسلسل امام صاحب مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھاتے، تو کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ کو جس مقصد کے لیے لائے تھے، رکھا تھا، پورا نہیں ہو رہا، اگر آپ نے ڈیوٹی نہیں کرنی تو آپ ہمیں بتائیں۔ طالب علم گھر آ کے بتاتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے استاد نہیں آتے، اسکول کے استاد نہیں آتے، فلانا کام نہیں کرتے۔ بڑا احترام ہے استاد کا، کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ پڑھا نہیں رہا، ڈیوٹی نہیں کر رہا، تو سارے ادب اور احترام کے باوجود بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، ادارہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب احترام اپنی جگہ پر، مقصد تو پڑھنا ہے نا۔ اگر پڑھائی نہیں ہو رہی تو پھر صرف ادب کے سر پہ تھوڑی بیٹھے رہنا ہے۔ جو آدمی بہت سارے ارادے کر کے ملک سے باہر جاتا ہے، اس کی ماں زیور بیچتی ہے، باپ ادھار پکڑتا ہے، سعودی عرب میں بچہ بھیجا ہے کوئی کمائی کرے، لیکن اگر وہاں جا کے وہ فارغ پھرتا ہے تو یہاں سے جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی اسے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یار تیرے ماں باپ نے اتنی مشقت سے بھیجا ہے، تو یہاں آوارہ پھر رہا ہے، کوئی کام کر۔ القصہ کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے مقصد کی، میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں کمپیوٹر چلانا بھی تمہیں آئے، موبائل چلانا بھی تمہیں آئے، گاڑی چلانی بھی تمہیں آئے، تمہیں زندگی کی بہت ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن تمہارا اصل کام پڑھنا پڑھانا ہے۔ لوگ جب تمہارے پاس آئیں گے تو دینی مسئلہ پوچھنے آئیں گے، ویلڈنگ کا مشورہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اپنا جو کام ہے وہ بندہ جب نہیں نہ کرتا، جو اس کی اصل ڈیوٹی ہے، باقی ساری۔ یہاں ایک اور بھی بات آپ سے عرض کروں، کئی دفعہ ہمیں اپنے اصل کام کی وجہ سے برکتیں ملتی ہیں، جو ہماری اصل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کئی برکتیں اور ملتی ہیں، تو ہم برکتوں جو باقی اس کے ضمناً چیزیں ملی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور اصل کام چھوڑ دیتے ہیں کہ تو ضمناً ملی ہیں۔ اس کام کی برکت تو زندگی میں مقاصد جو چیزیں پوری نہیں کرتی۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، تو پھر بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو حضرت رومی کہتے ہیں میں نے اسے ایک مثال دی، وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، مجھے بھی آئے گی چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک بی بی نے نا بچڑا پالا تھا، وہ دیہاتوں میں نا بوڑھی عورتیں بعضوں کا جانور پالتی تھی، تو ایک پیڑا آٹے کا اسے بنا کے دیتی، اس کا نام رکھ لیا، کوئی نام رکھ لیا، تو آواز دیتی تھی، دوڑا آتا تھا پیڑا ملے گا۔ وہ پل گیا، بڑا ہو گیا بیل۔ اب وہ بڑا تو اس لیے کیا تھا کہ ہل کے آگے لگائیں گے۔ کھا پی کے جب وہ جوان ہو گیا، اسے کہا کہ ہل کے آگے اس کو لگاؤ تاکہ یہ کھیت جو ہے کھیتی کرنے کے کام آئے، کھیت میں ہل چلائے، کھیتوں کی آباد کاری میں یہ معاون بنے۔ تو اس کو جب آگے لگانا چاہا تو اس نے کہا میں نے تو نہیں لگنا۔ تو بچے اماں کے کہنے لگے کہ انہوں نا کسائیاں نو دئیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کو پتہ ہے نا گھر کا پلا ہوا ہے، اپنا ہے، پیارا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। मैं तो बस गया, अगले 5-7 मिनट गल मुक जानी, टाइम ही थोड़ा है। भाई जाता है कि नहीं कसाइयों के पास? अम्मा 2-3 दफा कहती है कि चलो रहने दो, ठीक हो जाएगा। वो भी कोशिश करते हैं, कोई नकेल शकेल डालते हैं, कोई खींचते हैं, कोशिश करते हैं। चल गया तो की आखिद हाले कढ़न डे हैं इनू, जे ते निकल जाए हाले तो फिर ते, और अगर ना निकले तो फिर हजरत रूमी कहने लगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब ने तुझे पैदा इबादत के लिए किया है। तो जब तू अपने घर में जानवर पाले, प्यार भी तेरा बड़ा है, और वो जिस काम के लिए रखा है वो काम ना करे तो तू कसाई को देता है, तुझे पता है वो काट डालेगा, बोटियां करेगा, लहू बहाएगा, तो बर्दाश्त करता है ना? क्यों कि ये हिकमत का तकाजा है। कि फिर बाकी बैल का क्या कसूर है जो ड्यूटी कर रहे हैं? ये कोई नवाब है कि मैंने हाल में भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, और फिर भी खाए पिए? होता नहीं ना ऐसे। अल्लाह ने मखलूक पैदा की है अपनी इबादत के लिए। अगर ये इबादत ही ना करे, फटे पे बैठी रहे, फजर के टाइम सोई रहे, जोर के टाइम दुकान पे रहे, असर के टाइम चाय वाली दुकान पे, मगरब के टाइम बर्गर वाली दुकान पे, इशा के बाद वो 5-7-10 लोगों पे तबसरा करे, और नमाज पढ़िया करो, कहते मौली साहब दुआ करो। वो मैं क्या रोटी खान तो पहला भी दुआ कराओ ना, कि खादी नहीं जाती दुआ करे अजे, तनख्वाह लैन जान तो पहला भी दुआ कराओ ना। कभी किसी ने कराई है कि पैसे आ गए बैंक में, तनख्वाह आ गई है, मेरा लेने जाने को दिल, जरा दुआ करे अजे, कराने आ गए हो? अजीब फलसफा है ना। यानी आपने भैंस बेची, ट्रैक्टर बेचा, जमीन बेची, बंदा पैसे लैन आ गया तो कहता मौलवी जी दिल नहीं पे करता, जानते जरा दुआ करे आज। कराई कभी? कमाल बात है। नमाज का नाम लो, कहते दुआ करो। भाई जो बाकी बगैर काम जो जायज है आप बगैर दुआ के कर रहे हैं, सिर्फ अहमियत की बात। अल्लाह ताला ने यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब कहते हैं मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि पता चले तुम में बेहतर अमल कौन करता है। तुम तो अभी 5 नमाजों को पक्के नहीं हो रहे, यहाँ तो बड़े बेहतर अमल करने थे, मखलूक की खिदमत करनी थी, दीन का काम करना था, अनपढ़ों को तालीम देनी थी, बेनमाजियों को नमाजी करना था, बेज़ौक लोगों को ज़ौक वाला करना, रब के दरवाजे से जो दूर थे उन्हें अल्लाह की मार्फत का रास्ता दिखाना था, बेअदबों को मदीने वाले महबूब का अदब सिखाना था। तो इतने काम कारे जहां दराज है, इतने काम करने वाले थे, और ये तो अभी 5 नमाजों पे पाबंद नहीं हो रहे। तो दोस्त, जो लोग मकासद पूरे नहीं करते, जो लोग कहते हैं ना मैं जनाब बोर हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं लग रहा, वो क्यों नहीं लगता भला? बेकार आदमी बोर हो जाता है। बेकार आदमी, जो बंदा मुस्तकिल, ये देखे ना, ये अल्लाह ने जोड़ पैदा किया है, घुटने में, टखने में, कोनी में, बाजू में। आप लेट जाए, तजर्बा कर लें कि आपने 8 दिन पूरे उठना नहीं, जोड़ हिलाने नहीं। 8 दिन उठो ना, उठा जाएगा ही नहीं। फिर वो साढ़े वडेरे कहते ना मैनू काम करन दिओ, जे मैं बह गया तो फिर देखो ना, तुहानू पता है गल का, जे बह गया तो फिर मैं, तो जेड़ा बंदा नेक काम तो रह गया, फिर वो जेड़ा तारीखा पे देंदा ना रोजियां तो शुरू करांदा, हज कर रहा तो वो रह गया, जो पीछे रह गया सो। और माफी होती है मजबूरी की, गफलत की माफी नहीं होती। जो बच्चा कहे ना आके स्कूल के घर में फौतगी हो गई थी, बीमार हो गया था, तो उसे उस्ताद कुछ नहीं कहते, बिठा लेते। और अगर घर में पता हो कि घर से तो गया था पर स्कूल कॉलेज मदरसे गया, उसको भी उस्ताद माफी देते हैं, घर वाले, क्योंकि ये मजबूरी नहीं, ये गफलत है। हमारा मसला ज्यादा मजबूरियों का नहीं, हमारा मसला गफलतों का है। हम सुस्त हैं, हमें पता सारा ही है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। हमारा रौला गफलत का है।
देखे ना, सियासता में हदीस मौजूद है, एक जंग में सहाबा कहते हैं हमने अर्ज किया था या रसूलुल्लाह इस जंग में तो हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह बड़ा अजर देगा। तो हुजूर ने फरमाया कुछ सहाबा ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, आए नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे अल्लाह उन्हें भी उतना अजर देगा जितना तुम्हें सफर करने पर अजर दिया है। उन्हें घर बैठे मिलेगा जितना तुम्हें जिहाद करने पर अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कुछ मुझसे सुस्ती हो गई थी एक जंग में। मैंने कहा कल चला जाऊंगा, तो रह गया नहीं। कहते मुनाफिकों ने तो झूठ बोल दिए, ये मजबूरी थी, हुजूर चुप कर गए। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई थी, भूल गया था। कहते हैं 50 दिन हुजूर नाराज रहे। अपने लिए तो 3 दिन से ज्यादा रहना इजाजत नहीं, लेकिन ये तो दीन के लिए है ना। 50 दिन हुजूर ने नाराजगी रखी। मैं जाता था, पर जब मैं हुजूर को देखता था तो सरकार चेहरा फेर लेते थे, और मेरे जब इधर उधर ध्यान होता था तो हुजूर देखते थे, यानी मैं वेखा ते महबूब ना वेखे। जदों ना वेखा ते वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे, वो मेरे विच वेखण दे वेखे। यार ते तेरे अंदर वसदा है, तेनू एवें ही पैन भुलेखे, पर गुलाम फरीदा असां बूए यार दे मरना भावें वेखे या ना वेखे। ये भी तय है। कहते गया नहीं, बड़ी बड़ी आफरें आई, मुल्क शाम के लोगों ने आफर की, और मैं रोया। मैंने कहा मैं सुस्त थोड़ा सा हुआ हूँ, गलती हो गई है, पर मैं कोई महबूब का गद्दार तो नहीं ना। मेरा बोले चोले माफ करी, गलती हो गई ना। कहते हैं फिर मुझे अल्लाह ने शान ये दी कि मेरी तौबा का ऐलान कुरान ने फरमाया। दोस्तों ये जो है ना, हमारा रट्टा ये है कि हम अपने असल मकसद से हट गए। इधर उधर का सारा ही पता है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना किधर चला ना। अपना असल काम करें, अपनी असल ड्यूटी करें, असल काम करें अपना। जो असल काम है ना, उससे पीछे हटना असल काम। मुझे ना कुछ दोस्तों ने एक दफा मशवरा दिया कि अपनी रिहाइश आप थोड़ी सी ना साइड पे कर लें। कुछ ऐसी जरूरियात थी, हकायक थे, हालात थे, कुछ मुझे तब्दीली करनी थी। तो मैं 2-4 जगहों पे गया चेंजिंग के लिए, तो मैं वापस आ गया। मैं कहा यार उथे मस्जिद दूर है, इत्थे मस्जिद को रहना है। वो मैनू कहने लगी हजरत साहब है तो कोई बंदा गल ही नहीं करता, लोग तो कहते हैं गड्डी बूहे अगे आउंदी है कि नहीं। लोग तो देखते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ठीक है, गैस बिजली है, तो मसीत। मैं कहा यार टुर भावें जिथे जाइए मर्जी है, तो असी मसीत के बगैर गुजारा कोई, जिंदगी सारी मस्जिद में गुजर गई, गुजारा कोई नहीं मस्जिद के बगैर। लिहाजा रहना वही है जहाँ मस्जिद नेड़े हो। अपना जो असल काम है उसे कभी भी छोड़ना, अपने मकासद से कभी पीछे नहीं हटना, कभी भी। अपने आप जब ये तय कर लेते हैं ना, फिर कई दफा बड़ी सख्त मसला भी हो तो बंदा टाइम इतना है नहीं बात कोई कर सकूं आपसे। मुझे तो पता था कि मैंने दुआ के लिए जाना है, लेकिन मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो जब कल मैंने हालांकि गुजारिश की थी कि कोई आप ऐसा प्रोग्राम न बनाइएगा। चले खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हजरात को, ये भी मौका मिल गया आपसे बात करने का। इमाम अहमद बिन हंबल ना वुजू कर रहे थे, तो आपने एक बुच्छू देखा कि वो पानी में डूब रहा है, तो इमाम साहब ने उसे ना उठाया, पानी से बाहर निकाला। दरिया किनारे थे, झील किनारे, उसको निकाला तो उसने आपके हाथ पे डांग मारा। इमाम साहब ने खुश्की पे रख दिया, फिर वुजू करने लगे तो गीला हो गया था वो बिच्छू। अब वो थोड़ा सा पत्थर पे चला तो फिर पानी में गिर गया। इमाम साहब ने फिर निकाला, उसने फिर डंग मारा। आप फिर वुजू करने लगे, वो थोड़ा सा चला, पत्थर बिल्कुल मुलायम था, वो बिच्छू गीला था, वो थोड़ा चले फिर गिर जाए। 7 दफा इमाम साहब ने निकाला, उसने 7 डंग मारे। एक बंदा देख रहा था, कहने लगा हुजूर दफा करें, आपका सारा हाथ जख्मी कर दिया है। तो इमाम साहब कहने लगे अच्छा जी,
वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है और मैं अपनी अच्छी छोड़ दूं? वो बुरी पे डट गया है, गलत काम करता है तो डट के कर रहा है, डंग मार रहा है तो डट के, और मैं डूबने वालों को बचाऊं तो शर्मा शर्मा के बचाऊं? मैंने भी बचाना है तो डट के ही बचाना है। मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं बुरी पे डट गया? इसलिए कभी भी, हमारे हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना, बीबी बगैर पर्दे के गुजर रही थी तो फरमान लगे पुत्र पर्दा कर। बड़े साढ़े वर्गे बंदे सिर्फ मजमा ही होवे ते तकरीर करते हैं, अगे पीछे ना कभी निकाह टाइम भी जाके आखना चाहिए पर्दा करो जी ता पढ़ाना है। ये क्या बात हुई कि मतलब आप सिर्फ हम, ये मस्जिद में सारा कुछ है, और भी कई बंदे को खड़ा होना आना चाहिए। भाई साहब फरमान लगे पुत्र पर्दा कर, वो कहनी बाबा जा अपना काम कर। फरमान लगे पुत्र मेरा यही काम है, मैं काम में लगा, मैं काम ही तो मैं करदा, तलकीन कर रहे हैं, यही मेरी ड्यूटी है। तो मकसद से कभी पीछे ना हटे, नमाज तवज्जो से, इबादत तवज्जो से, खैर का पैगाम तो तवज्जो से। दुआ करता हूँ जिनका ख़त्म शरीफ है अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, हमारी हाज़िरी कबूल करे। टाइम अभी है 2-4 मिनट, तो सलाम का शेर पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह हज़रत दुआ फरमाएं।